Hello, my dear students. This is your mentor, Dr. Sumita Thakur, and today we are going to continue with the next topic of the chapter number 14, that is ecosystem. Here you are watching my channel, that is my wing, and here is your mentor, Dr. Sumita again. Okay, so dear students, in the previous topics, previous lectures, we discussed about the ecosystem and its components. So today we are having the next topic of this chapter, that is from the 12th biology, that is about the productivity. Okay, so when we talk about the productivity, here the word productivity is very important. What is the product? When we go to the market, we used to say कि I need this product. Okay, and what are the new products that are coming to the market? So we are going to talk about a particular thing. Okay, and when it comes to the ecosystem, the term productivity is very crucial. Productivity is related to the product produced by the living organisms, and so we can say that productivity is a kind of output. Okay, so what we can say, it is a kind of output of the living organism, and they may be plants or animals. Okay, so when we talk about the productivity or outcome of the living organism, it is of two types. One is the primary productivity and second one is the secondary productivity. Okay, so let us talk about the primary productivity. Productivity by the producers, output of the producers. प्राइमरी मतलब सबसे पहले अगर हम इकोसिस्टम की बात करते हैं तो वी यूज टू से वर्ड प्रोड्यूसर टू द प्लांट्स कि प्लांट्स जो होते हैं वो प्रोड्यूसर होते हैं. प्रोड्यूसर मतलब वो प्रोड्यूस करते हैं. क्या प्रोड्यूस करते हैं? दे यूज द सनलाइट, CO2 एंड वाटर एंड they perform the photosynthesis, and by this way they can prepare their own food. So we can say that productivity is primary productivity especially, it is the amount of the biomass or organic matter produced. मीन्स कितना अमाउंट, कितना एक प्लांट है, एक प्रोड्यूसर है, उसके अंदर कितना बायोमास प्रोड्यूस हो रहा है या उसके अंदर कितना ऑर्गेनिक मैटर बन रहा है. द ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस्ड पर यूनिट एरिया ओवर time. Means you are having a given time. Suppose you are given 1 month, 2 months or 1 year. So we'll calculate the amount, the substances, the biomass produced by the plants in a particular area. Suppose it is 1 kilometer, 2 kilometer area in any forest, right? So कितना उन्होंने ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस किया है एक पर्टिकुलर यूनिट एरिया में एक गिवन टाइम के अंदर. तो ऑब्वियसली दे विल डू फोटोसिंथेसिस, उसके द्वारा ही वो बनाएंगे सारा. सो इस टर्म को हम, इट इज़ एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ वेट की जब हम बात करते हैं तो इट इज़ एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ ग्राम पर मीटर स्क्वेयर. और when we convert this primary productivity into energy form, then we can use this calculation, kilocalorie per meter square. Okay, एंड पर ईयर में काउंट करेंगे तो हम पर ईयर लिखते हैं उसको. सो द प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज द रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन बाय द प्लांट्स इज कॉल्ड प्राइमरी प्रोडक्टिविटी. एंड इफ वी यूज द वर्ड एयर पर यूनिट टाइम, देन वी यूज किलो कैलोरी मीटर स्क्वेयर पर एयर. ओके, देन वी यूज पर एयर. सो कितना एक प्लांट में एक गिवन टाइम के अंदर एक पर्टिकुलर प्लेस में कितना बायोमास उसके अंदर प्रोड्यूस हुआ है, उसे हम बोलते हैं प्राइमरी प्रोडक्टिविटी. और जब भी हम प्राइमरी प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं तो जो प्लांट्स एक जगह पे रह रहे हैं, जो प्रोड्यूसर एक जगह पे रह रहे हैं, तो उसके ऊपर बहुत सारी चीज़ों का इफेक्ट पड़ता है. बहुत सारे इन्वायरमेंट फैक्टर हैं जो कि उसकी प्रोडक्टिविटी को इफेक्ट करते हैं. They are like nutrients. Availability of the nutrients is also important. कितने nutrients वहाँ प्रेजेंट हैं, फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी कितनी है प्लांट्स की, उसको कितना वाटर मिल रहा है वहाँ पे. तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं हर जगह पे डिफरेंट होती हैं. अगर हम बात करें प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ द ओशियन की या लैंड की हम बात करते हैं तो वहाँ भी वेरिएशन आती है.
ठीक है। तो एनुअल जो प्रोडक्टिविटी आ रही है बायोस्फीयर की, वो भी इसके ऊपर डिपेंड करती है। तो हम कह सकते हैं कि जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है वो इन्वायरमेंट फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है। तो जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है उसे हम 2 टाइप्स में बांट देते हैं, एक है ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और एक आता है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। देखिए ग्रॉस वर्ड का मतलब क्या होता है कि प्रोड्यूसर ने कितना प्रोड्यूस किया है। इट इज़ द रेट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस किया, उसके बाद उसने कितना आउटपुट दिया एक प्लांट ने, या बहुत सारे जो प्लांट हैं एक पर्टिकुलर एरिया के, उन्होंने फोटोसिंथेसिस के बाद टोटल अमाउंट कितना बनाया, दैट इज़ द ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, राइट। और जब हम बात करते हैं नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी की, तो नेट में क्या है कि प्लांट्स ने बनाया तो है, ठीक है, लेकिन जो ग्रॉस तो था जो टोटल प्लांट ने बनाया, उसमें से कितना रेस्पिरेटरी लॉस हो गया, कितना। अब प्लांट ने मान लीजिए, अगर हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि प्लांट ने मान लीजिए 10 किलो कैलोरी, ठीक है, पर ईयर वो बना रहे हैं, ओके। तो उसमें से अब प्लांट ने अपने लिए भी तो यूज़ करना है ना, कुछ जो भी उसने ग्लूकोज बनाया, स्टार्च बनाया, तो उसने अपने लिए भी तो यूज़ किया ना, उसकी बॉडी की एक्टिविटी के लिए, उसके मेटाबॉलिक रिएक्शंस के लिए भी तो ज़रूरी है। तो जो मान लीजिए उसमें से जो था 2 किलो कैलोरी जो था वो उसका लॉस हो गया, उसे हम एग्जांपल लेके चल रहे हैं रेस्पिरेटरी लॉस, यानी कि रेस्पिरेशन में उसका वो लॉस हो गया। तो अब हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि जो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी वो कितनी होगी, 10 - 2 दैट इज़ द 8 किलो कैलोरी जो है पर ईयर हमारा क्या रह रहा है, ये नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी आता है। जबकि ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कितनी थी, कितना उसने टोटल बनाया था, उसने बनाया था टोटल, और मान लीजिए उसने बनाया था 10 किलो कैलोरी उसने बनाया था पर ईयर। तो ये उसकी है ग्रॉस मतलब टोटल जो प्लांट के अंदर बायोमास बनेगा प्रोड्यूसर के अंदर, उसे हम बोलते हैं ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। और उसमें से जब हम रेस्पिरेटरी लॉस को निकाल देते हैं कि प्लांट ने जो अपने लिए यूज़ कर लिया, रेस्पिरेशन में यूज़ हो गया, उसको अगर हम माइनस करते हैं तो ये बन जाता है हमारा नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो इसी फार्मूले से हम इसको बोल सकते हैं कि जो ग्रॉस है वो किसके बराबर है, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी प्लस आर। देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक न्यूमेरिकल भी बन जाता है कई बार क्वेश्चन में क्या आया हुआ है पेपर में कि आपको नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी दी है और साथ में आपको रेस्पिरेटरी लॉस भी दिया है, यू नीड टू कैलकुलेट द ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो इट इज़ वेरी सिंपल, आप इस फार्मूले के थ्रू आप एक फार्मूला याद रख लें, ये वाला रख लीजिए आप, चाहे आप या ये वाला रख लीजिए, आपको यहाँ से आप दोनों ही चीज़ें कैलकुलेट कर सकते हो। यानी कि प्लांट ने जितना बनाया उसे हम बोलते हैं ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, और उसमें से जितना लॉस हो गया उसे हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी लॉस। तो लॉस के बाद जो बचता है दैट इज़ द नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती है, ओके। तो ये जो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है ये अवेलेबल है अब अगले कंज्यूमर के लिए। देखिए हम पढ़ते हैं कि जो प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर के बाद कंज्यूमर आते हैं, फूड चेन कॉन्सेप्ट अभी हम पढ़ेंगे आगे। तो उसमें क्या होता है कि जो प्रोड्यूसर को जब कंज्यूमर खा रहा है तो उस कंज्यूमर के लिए सिर्फ ये वाली चीज़ अवेलेबल है जो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है, यानी कि अगली जो कंज्यूमर के लिए सिर्फ 8 किलो कैलोरी अवेलेबल है। तो हम कह सकते हैं कि प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो है हमारी नेट जो NPP है, इट इज़ द अवेलेबल बायोमास फॉर द कंजम्पशन ऑफ द हेटेरोट्रॉप्स। हेटेरोट्रॉप कोई भी हो सकते हैं, आगे कोई हर्बीवोर हो सकते हैं, डिकम्पोजर हो सकते हैं, राइट। तो जब हम बात करते हैं सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी की, तो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी क्या होती है, देखिए सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी की जब हम बात करते हैं तो इट इज़ डिफाइंड एज द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय द कंज्यूमर, ठीक है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय कंज्यूमर। देखिए प्लांट कोई कंज्यूमर ने खाया, एक हर्बीवोर ने खाया, तो हर्बीवोर के अंदर कितना ऑर्गेनिक मैटर बना उस प्लांट को खाने के बाद, तो जो उस हर्बीवोर के अंदर बायोमास प्रेजेंट होगा उसे हम बोलेंगे सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, जो कि अगले के लिए जो हमारा सेकेंडरी कंज्यूमर होगा उसके लिए अवेलेबल होगा। तो NPP जो है वो यहाँ पे अवेलेबल है हर्बीवोर के लिए, अगले ट्रॉफिक लेवल के लिए, और यहाँ जो प्रोडक्टिविटी आएगी वो उसके नेक्स्ट वाले के लिए अवेलेबल होता है। तो जब भी हम प्राइमरी प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं तो एक पर्टिकुलर एरिया पे हम फोकस करते हैं, ओके। तो जो, और अगर हम बात करें नेट प्रोडक्टिविटी की, तो जो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ होल बायोस्फीयर इज़ अबाउट 170 बिलियन है हमारी। अब देखिए यहाँ पे क्या वर्ड आ रहा है कि नेट प्रोडक्टिविटी कितनी हो गई हमारी, ये तो थी नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो हम बात कर रहे हैं अब कि जो
हमारी नेट प्रोडक्टिविटी आती है वो किसके बराबर होती है, NCP, यानी कि NCP बोलते हैं इसको हम, नेट प्रोडक्टिविटी, या इसे हम नेट कम्युनिटी प्रोडक्टिविटी भी बोलते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं, नेट कम्युनिटी प्रोडक्टिविटी भी बोलते हैं इसको, NCP, यहाँ से NC and P। तो ये किसके बराबर होती है, PP, राइट, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस HR। HR क्या है, हिट्रोट्रॉपिक रेस्पिरेशन, कि हिट्रोट्रॉप्स ने कितना रेस्पिरेशन आगे किया है, तो उसको इसमें से माइनस कर देते हैं, तो जो बचता है वो हमारी नेट प्रोडक्टिविटी आती है, नेट कम्युनिटी, जो कि ट्रॉपिक लेवल में एंटर कर गई है। तो अगर हम अपने बायोस्फीयर्स की बात करते हैं तो एनुअल नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो हमारी एनुअल NPP है, हमारा NPP जो है हमारा 170 बिलियन टन है, ठीक है, हमारे बायोस्फीयर की। लेकिन यहाँ पे देखिए मैं एक वर्ड लिख रही हूँ, ड्राई वेट। देखिए यहाँ पे जब भी हम प्रोडक्टिविटी को मापते हैं तो इसको हम दो वर्ड यूज़ कर सकते हैं, या तो हम ड्राई वेट या वेट वेट यूज़ करते हैं। हम क्या टर्म यूज़ करते हैं, एक तो वेट वेट यूज़ करते हैं कई बार, और कई बार हम ड्राई वेट। वेट वेट क्या होता है कि वेट मतलब गीला, यानी कि कोई भी बायोमास है, गीला पत्ता आप लेके उसका वेट कर रहे हो, दैट इज़ अ वेट बायोमास। अगर हम उस पत्ते के सूखने के बाद उसको वेट करते हो, दैट इज़ अ ड्राई वेट। तो अगर हम बात करते हैं हमारे ओशियंस की, तो ओशियंस जो है हमें पता है कि 70% जो है वो 71% जो है वो अर्थ का वो वाटर है। लेकिन जो ओशियंस हैं दे जस्ट कंट्रीब्यूट ओनली, ओशियन जो है दे जस्ट कंट्रीब्यूट द 55 बिलियन टन टू द प्रोडक्टिविटी, राइट। तो जो ओशियंस है वो 55 बिलियन टन प्रोडक्टिविटी देते हैं हमें, और जो हमारा बायोस्फीयर है वो 170 बिलियन लेता है। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो रिक्वायरमेंट है, फूड की रिक्वायरमेंट है, कि जो एनर्जी का जो बैलेंस है इकोसिस्टम में, दैट डिपेंड्स अपॉन द बायोस्फीयर। और इसमें हम एक चीज़ और कह सकते हैं कि हमारे अब यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज होता है कि व्हाट इज़ द रीज़न फॉर द लो प्रोडक्टिविटी ऑफ द ओशियन, कि ओशियन में इतनी कम प्रोडक्टिविटी क्यों आ रही है। देखिए तो जो लेस प्रोडक्टिव है हमारी लेक्स हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा लीस्ट प्रोडक्टिव, अगर मैं आपको बताऊं कि सबसे लीस्ट प्रोडक्टिव क्या है, तो इसको हम छोड़ देते हैं अभी। लीस्ट प्रोडक्टिव जो एरिया है दैट इज़ द, यहाँ पे हमारी लेक्स आती हैं, डीप लेक्स आती हैं, दीज आर द लीस्ट प्रोडक्टिव। और अगर हाईली प्रोडक्टिव की बात करते हैं, हम हाईली प्रोडक्टिव की बात करते हैं तो हम बोल सकते हैं कोरल रीफ्स के बारे में, कोरल रीफ्स, कोरल रीफ्स, ये हाईली प्रोडक्टिव। देखिए ना ऑस्ट्रेलियन कोरल रीफ्स अगर आपने सुना हो, तो दीज आर द रिच सोर्स ऑफ लाइफ एंड न्यूट्रिएंट्स ऑल्सो। तो अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ द रीज़न फॉर द लिमिटिंग द आउटपुट ऑफ द ओशियंस, कि ओशियंस की आउटपुट इतनी कम क्यों है। तो डियर स्टूडेंट्स लेट मी टेल यू कि जो नाइट्रोजन है ओशियन की, जब हम बात करते हैं तो ओशियन में नाइट्रोजन का सोर्स नहीं है ना। नाइट्रोजन जो है वो बहुत रिक्वायर्ड है प्लांट्स की ग्रोथ के लिए, तो ओशियन में नाइट्रोजन का कोई भी सोर्स अवेलेबल नहीं है। हमें पता है कि जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को वो डिजॉल्वेबल नाइट्रोजन फॉर्म में नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देते हैं, नाइट्राइट में, नाइट्रेट में, अमोनिया में, फिर उसे प्लांट एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो इस तरह से वो नाइट्रोजन कंटेंट उसमें बैलेंस हो जाता है। लेकिन जब हम बात करते हैं ओशियंस की, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल, ओशियन में ऐसा कोई भी सोर्स नहीं होता है। और अगर हम लेक की बात करते हैं तो मोस्टली लेक में फॉस्फोरस की कमी होती है, तो फॉस्फोरस इज द लिमिटिंग फैक्टर इन द लेक्स। सो दिस इज़ हाउ वी कैन से, एंड द मैक्सिमम अगर हम बात करते हैं कि सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी कहाँ से आ रही है, तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट से आ रही है, हाईली प्रोडक्टिव कोरल रीफ्स है, और साथ में हमारे जो रेन फॉरेस्ट है, these are the highly productive areas. So dear students, in this topic what we learned that we learned about the productivity, that is of two types, gross primary productivity and secondary productivity. So and primary productivity is further of two types, gross primary productivity and net primary productivity. So dear students, as we know that ecosystem is self-sustaining.
Okay, it is the boundaries of the ecosystem are indistinct, and boundaries always overlap. They are showing the overlapping character. One ecosystem overlap with the another, and the natural ecosystem are highly stable as compared to the artificial ecosystem, because in the natural ecosystem we are having the species diversity, so that is the reason they are more stable. And one more point which I want to tell you, that during photosynthesis the primary producer absorbs solar energy and they convert it into the chemical energy. That is why the producer are also called transducer. इन्हें क्या बोलते हैं, ट्रांसड्यूसर और कन्वर्टर भी हम इन्हें कहते हैं, ट्रांसड्यूसर या और कन्वर्टर इन्हें हम कहते हैं. And in the ecosystem, in the productivity, decomposers, they play a significant role, right? They recycle the minerals, and they decompose the dead and decaying matter, so these are very essential for the stability and existence of the ecosystem. And ecosystem play a very important role in the energy flow and nutrient cycle. And यहाँ पे हम बात करते हैं, we are having the two law of the thermodynamics. So ecosystem is based on the first and second law of thermodynamics. First law is according to the first law, energy can neither be created and not be lost. So our ecosystem is not an exemption to this. So the ecosystem follow this first law of thermodynamics. And in spite of that, as per the second law of the thermodynamics, that the transfer of the food energy from one to another organism lead to loss of energy as heat due to metabolic activity. So this is the point. Here ecosystem follows the second law of thermodynamics also. They need a constant supply of energy to synthesize the molecules they require and to counteract the universal tendency towards the increasing disorderliness. So when we talk about the productivity in the ecosystem has to follow the first and second law. Only then the system can be in the proper order. Okay, so dear student, that's all about the today's topic, that is the productivity. And you are watching my channel, Bio Will. And if you are having any query, you can ring me up on given number. So till then, take care, goodbye. Thank you so much.